بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آپ سب لوگوں کا فیڈ بیک کا شکریہ۔ واقعاً گرامر جو ہے وہ آسان نہیں ہے، ٹف ہے، لیکن اگر اس کو ہم فارمل طریقے سے پڑھیں گے تو یہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ پھر ایک سیٹ آف رولز ہوں گے جو سارے یاد رکھنا کبھی بھی آسان نہیں ہے، اور جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے وہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھیں گے۔ سارے رولز آہستہ آہستہ پریکٹس کے ساتھ ذہن میں بیٹھیں گے۔ آپ لوگوں کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ نے عربی پہلے کچھ پڑھی ہوئی ہے یا آتی ہے، بیکاز آف ویدر یو ہیو لیوڈ دیئر ان این عربک اسپیکنگ کنٹری، یا آپ نے مفاہیم کی بکس 3-4 کی ہوئی ہیں تو آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہے۔ ٹھیک ہے، امیجن کریں آپ کو یہ سب کچھ پڑھایا جا رہا ہوتا مفاہیم پڑھانے سے پہلے، ٹھیک ہے، تو پھر اور کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا، آپ کو الفاظ کے معنی بھی نہ آتے، اور دیٹ وڈ ہیو بین ایون مور چیلنجنگ۔ جو آبجیکٹو ہمارا آپ ذہن میں رکھیے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ سارے رولز یاد ہو جائیں۔ آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کو موٹی موٹی باتیں یاد رہ جائیں، پھر ہم جب بک 3 کریں گے، بک 4 کریں گے تو یہ وہاں پر بار بار پھر وہ ریپیٹ ہوں گی، اور وہاں پر پھر میں اشارہ کروں گا، دیکھیے آپ نے گرامر پہ ہم نے یہ سیکھا تھا، یہ یہاں پر اپلیکیشن ہے، یا ترجمہ کرتے ہوئے تو آپ یہاں پر یہ یوز کریں، وہ پھر ایسا ایسا پریکٹس ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اس میں ہم نے پریکٹس کے لیے بہت زیادہ ایکسرسائزز نہیں دیں، اور عارف صاحب نے بھی کہا کیونکہ لوگ یہاں پر اکثر پروفیشنلز ہیں، اگر ہم ایکسرسائزز بہت سارا ڈال دیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ کر کے آئیں تو پھر وہ کلاس کا چلنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر شخص کو شاید ٹائم نہ ملے۔ تو ایک بیسک ایکسرسائزز، بنیادی لیول کی ایکسرسائزز اینڈ پہ ہیں فار انٹرسٹڈ اسٹوڈنٹس، کچھ ہم کلاس میں بھی کریں گے آج، ٹائم شاید میں چاہوں گا تھوڑا سا ہم ایکسرسائزز کو دیں، اگرچہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ میں بولوں اور کانٹینٹ کور ہو جائے، لیکن وی ول گو اوور دی ایکسرسائزز ایز ویل، تاکہ وہ بھی تھوڑا سا پریکٹس بھی ہو جائے۔ لیکن ایونچولی اس کی پریکٹس آپ کو جب مفاہیم 3 ہم شروع کریں گے، یا نیکسٹ مفاہیم کی بک جو لوگ سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ وہاں پر انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ یہ رولز جو ہے نا یہ انفولڈ ہونا شروع ہوں گے۔ لیکن ایک دفعہ بک کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ٹیکسٹ بک کو ضروری ہے، یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہے۔ صرف لیکچر کے اوپر اکتفا نہ کیجیے گا، ٹیکسٹ بک کو ایک دفعہ ریویو کیجیے گا تو اس میں چیزیں اسٹرکچر میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اتنا کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیٹس اسٹارٹ ود دی لیسن، اور we'll start with where we left yesterday، رب العرش الکریم اور رب العرش الکریمو۔ ٹھیک ہے، ہم دو چیزیں، ہم نے 2 ڈفرینٹ سینٹینسز تھے، اس کو آپ نے کہا تھا کہ مختلف طریقے سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کس سے ہم، شکیلہ آپ ٹرائی کرنا چاہیں گی کہ رب العرش الکریم میں جو پہلا ہے اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کہ رب کریم جو ہے وہ رب سے تعلق رکھتا ہے، تو آئی تھنک میں نہیں کر سکوں گی، آپ کسی اور سے چیک کر لیں۔ کسی اور سے کرتے ہیں میں ٹرائی کروں؟ جی، فرا آپ کیجیے گا۔ فرا مہدی کہہ رہے ہیں، کس کو جی فرا مہدی، اچھا، یا فرا یوسف کر لیں، دونوں میں سے جو بھی چاہے۔ جو ہے رب العرش الکریم میں عرش الکریم جو ہے وہ ایک بنتا ہے، تو یہ بنے گا کریم عرش کا رب، اور کریم عرش کا رب، اور یہ دوسرا والا رب العرش الکریمو، ربو اور کریم ایک اس میں آ گیا، یعنی کریم رب کا عرش۔ جی کسی کا کوئی ڈفرینٹ آنسر ہے اس میں؟ جی، ایک میں عرش کریم ہے اور ایک میں رب کے ساتھ کریم کی کوالٹی آئے گی۔ جی، اگر جو پہلا جیسے کہا ہے وہ مناسب ہے کہ جو پورا ایک بلاک جو ہے وہ رب العرش الکریم ایک بلاک ہے، کریم عرش کا رب، جبکہ جو دوسرا جملہ ہے اس میں رب العرش جو ہے عرشی وہ ایک بلاک ہے، اور جو الکریم ہے
वो एक डिफरेंट लग रहा है कि उससे जुदा लग रहा है मुझे। जी। हाँ, लेकिन इसका तर्जुमा क्या होगा? तो पहले का तर्जुमा होगा करीम अर्श का रब, और दूसरे का तर्जुमा होगा कि अर्श का रब करीम है। नहीं, अर्श वाले रब का करम ऐसे नहीं हो सकता। करीम रब का अर्श, यानी सिफत मौसूफ, रब और करीम सिफत मौसूफ, और अर्श जो है वो बिलोंगिंग को। जी देखिए, रब्बुल अर्शिल करीम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस हवाले से कि यहाँ पहले वाले एग्जाम्पल में रब्बुल अर्श हो गया, यानी आप ये देखिए कि अल अर्श लफ्ज़ अल अर्श है और अल करीम है, ये दोनों का ग्रामेटिकल स्टेट सेम है, ठीक है ना। तो ये अर्श करीम हो गया, ठीक है ना। इस वर्ड के साथ, अर्श इस ब्लॉक के साथ, या ब्लॉक सिफत एडजेक्टिव के ब्लॉक के साथ लफ्ज़ रब जो है वो ऐड हो रहा है। तो रब्बुल अर्शिल करीम, क्योंकि अर्श और करीम की ग्रामेटिकल स्टेट सेम है, आप तर्जुमा करेंगे अर्श करीम का रब। और अगर हमने कहना हो कि अर्श का रब जो के करीम है, अर्श का रब जो के करीम है, यानी वो रब जो करीम है। रब के लिए हम एडजेक्टिव लेके आना चाह रहे हों तो इसे रब्बुल अर्श, बेसिक तो ये बनेगा ना, अर्श का रब तो यही बनेगा ना ऐसे ही, राइट। अब आपने एडजेक्टिव लेके आनी है, रब की एडजेक्टिव लेके आनी है। तो करीमे या करीमो, करीमो करीमो करीमो। अच्छा, ग्रामेटिकल स्टेट मैच करके मार्फा नकरा भी मैच करना चाहिए। यहाँ पर जिस रब्बुल अर्श की बात आप कर रहे हैं, ये मार्फा है या नकरा है? मार्फा, अलिफ लाम तो रब के ऊपर नहीं है, लेकिन अर्श पर है। अर्श के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये रब्बुल अर्श जो है ना, अभी जो रब्बुल अर्श है ये एक ब्लॉक है ना, इसकी सिफत आ रही है, ठीक है। तो रब्बुल अर्श मार्फा है, तो लिहाजा यहाँ पर अल करीम भी मार्फा आएगा, ठीक है। तो रब्बुल अर्शिल करीम जो हो जाएगा रब, अर्श का रब जो कि करीम है, या अर्श का करीम रब। और अगर यहाँ पर मैं अल करीमो अल खत्म कर दूं, इससे हो जाए करीम, क्या करीमो की वजह करीमुन आना चाहिए। पहली बात तो ये कि करीमुन आएगा, राइट। अगर अलग हो जाएगा तो करीमुन आएगा। करीमुन आएगा। करीमुन अब ये बता रहा है कि देखें कि ये कनेक्टेड नहीं है दूसरे के साथ, ग्रामेटिकल स्टेट मैच नहीं कर रही। तो एक ब्लॉक ये है और ये आपका दूसरा पार्ट है सेंटेंस का। अब ये पूरा एक सेंटेंस बन गया है। अब इसका तर्जुमा करेंगे, रब अर्श का रब करीम है। अब ये एक पूरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, समझ में आया अभी। ठीक है। अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ कि अगर दो सेंटेंस, दो जुमले साथ साथ हों, मसलन रजुलो और उसके आगे आप आदिलुन, क्या तर्जुमा बनेगा इसका? सिफत मौसूफ नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है। तो दो इसम जब साथ साथ होते हैं, या आप वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, कनेक्ट निस्बत दी जा रही होगी, ठीक है, जिसको मरकब इजाफी का लफ्ज हम यूज करते हैं, ठीक है, रसूलुल्लाह, कुछ इस किस्म का कनेक्शन होगा, या फिर वो सिफत और मौसूफ होंगे, एडजेक्टिव होंगे।
ٹھیک ہے نا, یا پھر وہ سینٹینس بن رہا ہوگا, دو علیحدہ بلاکس ہوں گے کہ دونوں ساتھ ساتھ قریب آگے ایک سینٹینس بنا رہے ہیں, یا ایک اور ہوگا جو آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ دیکھیے الرجل عادل, آدمی آدمی عادل ہے, ہاں رجل آدمی جو ہے, شخص جو ہے, جو عادل ہے. وہ عادل ہے, یہ ایک سینٹینس ہے. ٹھیک ہے, الرجل. اچھا, آپ جب ہم ابھی آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کبھی آپ رک رک کے توجہ کریں, لیکن قرآن کو ترجمہ کرتے وقت وہی ٹیکنیک یوز کیجیے گا جو مفاہیم میں آپ کو عادت ہے. اس طرح کہ آپ ہر لفظ پہ سٹاپ کریں اور پھر کچھ سوچیں کہ اچھا یہ ایڈجیکٹیو ہے, سینٹینس بن رہا ہے, تو اس طرح آپ کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے گا. جب ہم شروع میں بھی حوزے میں ہم گرامر کے رولز پڑھنا شروع کیے, پھر اب نماز کے اندر بھی اگر ہم کبھی کوشش کرتے تھے اچھا یہ سورت پڑھ رہے ہیں, اس میں یہ سینٹینس ہے, یہ ایڈجیکٹیو ہے اور یہ ایسا ہے, تو وہ بہت زیادہ آپ کو نا آپ کی رکاوٹ آ جائے گی. وہ گریجولی وتھ ٹائم پریکٹس کے ساتھ سنک ان ہونا شروع ہو جائیں گی. ابھی آپ جب مفاہیم پڑھ رہے تھے آپ نے گرامر کی طرف توجہ کیے بغیر سارے ترجمہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ اب گرامر کے رولز جہاں پر آپ اٹکیں گے آپ کے لیے, یا کبھی آپ توجہ کرنا چاہیں فارغ ٹائم میں تو کر لیں, لیکن ان سارے رولز کو اپلائی کر کے ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے, کسی کے لیے بھی. لیٹ اٹ کم نیچرلی. دوسرا ایگزامپل, الرجل العادل, العادل. یہ صفت موصوف ہو جائیں گے. ترجمہ عادل آدمی عادل, عادل آدمی. ٹھیک ہے, الرجل العادل. آگے میں کہہ دوں عالم, یا کہہ دوں زاہد. ایک شخص جو کہ زاہد ہے. عادل عادل آدمی شخص زاہد زاہد ہے. عادل شخص زاہد. الرجل, ہاں الرجل عادل, یہ صفت موصوف ہے, تو یہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے تو آپ اس کو اکٹھا ترجمہ کریں گے نا, عادل شخص. ٹھیک ہے, جو اور یہ زاہد ہے. زاہد ہے, یہ سینٹینس ہو گیا. اور اگر یہ ایسے ہو جائے, عادل و زاہد شخص, عادل و زاہد ٹھیک ہے نا, آدمی. یہ ایڈجیکٹیو بن گیا, یہ دوبارہ ایڈجیکٹیو ہی ہے نا یہ. جی, صفت موصوف. ٹھیک ہے, یہ تو یعنی دو ایڈجیکٹیوز آ گئے. اب یہ سمجھ لیں کہ دو ایڈجیکٹیوز آ گئے. ٹھیک ہے, کیا بنے گا اس کا ترجمہ؟ عادل زاہد شخص. زاہد عادل, اور اردو میں اور کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یا آپ کے عادل زاہد شخص, ایسا شخص جو عادل اور زاہد ہے. یہ اور کا لفظ آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا, کہ اردو میں دو ایڈجیکٹیوز لانے کے لیے آپ کو اور کا لفظ, ذہین اور اچھا بچہ جس طرح آپ کہتے ہیں, زاہد اور عادل شخص. اس کو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ شخص عادل اور زاہد ہے, کہ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ سینٹینس بن گیا نا, یہ سینٹینس بن جائے گا. اگر آپ نے وہ کہنا ہے پھر آپ کہیں گے الرجل عادل عادل زاہد. 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 تھینک یو. اچھا, اس میں آگے ساجد کا لفظ ایڈ کر لیا, اب کیا ترجمہ بنے گا؟ عادل اور عادل و زاہد زاہد شخص ساجد ہے. یعنی سجدہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا آپ کو انڈرسٹینڈ ہو رہا ہے کہ ہاؤ تھنگس آر ورکنگ. جی, بیٹر ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے, ارشد رضی آپ بھی ہوپ فلی آپ فالو کر رہے ہیں سب کچھ. خاموشی, سب لوگ کلاس میں اکثر لوگ صرف لسننگ موڈ میں ہیں, which is good, کیونکہ کلاس کا سائز بڑا ہے. You just need feedback from everybody کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, everything is clear. جی جی ٹھیک. جی سمجھ میں آ رہا ہے مجھے تھوڑا تھوڑا.
अच्छा, इसकी अब आप एक चीज, अगर आप प्रैक्टिस कोई अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो मफाहिम बुक 1 को लेके ना आप उसकी एक तक़वियती मशकें या उसकी पहले 5-6 लेसन्स जो हैं उन्हीं में से कोई एक्सरसाइज खोल लें, कोई कुछ आयात खोल लें जो आपको अपने तर्जुमा पहले की हुई हैं, और उनमें ये रूल्स अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर और एप्लीकेशन भी आपकी हो जाएगी। कभी कभी सेंटेंस का दूसरा पार्ट जरूरी नहीं है कि नाउन हो, वो जरा आसान होता है आपके लिए, आप करते हैं। मसलन अल्लाह यखलुकु, ये पहला वर्ड है, पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। यखलुकु का तर्जुमा वो खल्क करता है। अब अल्लाह वो खल्क करता है, ये तर्जुमा बन जाएगा। या अल्लाह खल्क करता है, ये पूरा अगर सेंटेंस हाँ, हो। उर्दू में वैसे ही तर्जुमा करेंगे अल्लाह खल्क करता है, लेकिन अरबिक के अंदर इसी वर्ड को कहने के दो डिफरेंट तरीके हैं। एक ये है कि आप नाउन से स्टार्ट करें सेंटेंस, एक ये है कि आप सेंटेंस को वर्ब से स्टार्ट करें, यखलुकुल्लाहु। ये जुमला इस्मिया और फेलिया का जुमला फेलिया का यही फर्क है। अरबिक में सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस नाउन से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वजह से हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं अरबिक में, या सेंटेंस नाउन से स्टार्ट होगा या सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ देम। अगर लेकिन इनके मतलब तो एक ही है ना, कोई फर्क तो नहीं? मतलब एक जुमला इस्मिया नाउन से जो स्टार्ट होता है उसमें थोड़ी सी एम्फेसिस ज्यादा होता है। ओके। लेकिन उर्दू में तर्जुमा करते वक्त हमें फर्क नजर नहीं आएगा, महसूस नहीं होगा उर्दू में फर्क। अब एक सवाल है वो अल्लाह समद के बारे में। जब हम कुरान में पढ़ते हैं, जब भी हम आयत करते हैं तो आमतौर पे मसलन समदू है वो हम समद करके उसको वहाँ पे सुकून कर देते हैं। तो जी। क्या इस जो तजवीद की जो ये जो हैं रूल जो हैं इनका कोई असर होता है इसके तर्जुमा के ऊपर? जिस तरह से नॉर्मली अल्लाहु अस्समदु विल बी सिफ्त और मौसूफ, और आमतौर पे आप कहेंगे कि समद वाला अल्लाह या बेनियाज अल्लाह, लेकिन आपने बोला कि जब अगर यहाँ पे जुमला ख़त्म हो रहा हो तो इसको फिर हम जुमले की शक्ल में भी ले सकते हैं, यानी कि अल्लाह जो है वो बेनियाज है। तो is that the reason why we like do sukoon when we do ayat, for example, on something like this, or is that completely disconnected? तजवीद के रूल ग्रामेटिकल स्टेट पे इफेक्ट नहीं करते। तजवीद में आप करेंगे अल्लाहु समद, रुक जाएंगे अगर आपने सेंटेंस के एंड पे या कहीं पर भी पॉज करना है तो उसकी आखिरी को जाहिर नहीं करेंगे, आप समद पढ़ेंगे, ठीक है। और याद रखिए अरबिक के अंदर नाउन के ऊपर कभी भी सुकून नहीं आती। जी, नाउन वो सुकून वाला ग्रामेटिकल स्टेट नहीं लेता, वो सिर्फ आप पढ़ते वक्त अब उसकी ग्रामेटिकल स्टेट को जाहिर नहीं कर रहे। इट एक्चुअली इज समदो। जो अरबिक स्पीकर है उसको समझ आ जाएगी कि इसका ग्रामेटिकल स्टेट क्या है। ग्रामेटिकल स्टेट विल नॉट चेंज वेदर यू से इट असमदो और असमद। वो स्पोकन रूल, स्पीकिंग के रूल्स हैं, तजवीद के रूल्स हैं कि आपने इसको इस तरह से स्टॉप करते हुए करना है। वो चूंकि सेंटेंस खत्म हो रहा है इसलिए आप स्टॉप हो रहे हैं, वो मे बी आगे सुनने वाले के लिए प्रोसेस करना मेंटली उसके माइंड को आसान हो जाता है कि अच्छा सेंटेंस स्टॉप हो गया तो दिस इज द सिफत मौसूफ की बजाय सेंटेंस है। अगर आप अल्लाहु समद हो, लेकिन अगर नहीं रुकते अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद भी पढ़ जाते हैं तो वो प्रोसेस कर लेगा एक अरब माइंड कि आगे जो है वो एक नई चीज आ गई है, वो कनेक्टेड नहीं है इसके साथ। तो ये मैं कर सकता हूँ थोड़ा, क्योंकि थोड़ा तजवीदों के राज से मेरा है, अगर इजाज़त देते हैं तो। क्योंकि कुरान मजीद पढ़ने में या अरबी पढ़ने में हमेशा यही है कि कुरान मजीद में पढ़ने में लगा लें, उसमें यही है कि हमेशा वक्फ करना चाहिए जब आप रुकते हैं। अगर आप वक्फ नहीं करते तो आप गलती करते हैं। जैसे अज़्ज़का, अब ज़कात के ऊपर ताय तानीस कहें या ताय मरबूता कहें, हालांकि वो गोल बनी होती है, उसके ऊपर 2 नुक्ते भी होते हैं, लेकिन
اس کو پڑھیں گے یہیں، جیسے الصلاۃ، جب یہ اذان دیتے ہیں تو آپ وہ کبھی الصلاۃ یا الصلاۃ یا نہیں پڑھے گا. تو وقف کرنا عربی پڑھنے میں یا قرآن مجید پڑھنے میں لازم ہے until unless you continue. جیسے اللہ الصمد پڑھنا لازم ہے اگر آپ رک رہے ہیں. اگر آپ اللہ الصمد پڑھیں گے تو تجوید و قرات کے لحاظ سے غلط ہے. کبھی بھی آپ قاری کو سنیں گے کبھی بھی وہ آگے سے جاری نہیں کر رہا ہوگا، وہاں رک رہا ہوگا تو پھر رک رہا ہوگا وہ ساکن ہوگا. ٹھیک ہے، پلیز کنٹینیو. جی جی، تو جو عارف صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل وہ صحیح فرما رہے کہ اگر آپ سٹاپ کر رہے ہیں یہاں پر آیت پہ تو پڑھتے وقت اللہ الصمد پڑھیں گے تجوید کی قرات کے رولز کے مطابق، انلیس آپ اگلے آیت کے ساتھ اس کو جوائن کر رہے ہوں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ایسے پڑھ رہے ہو، پھر آپ صمدو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وہ قرات کے رولز یہی ہیں. عطیب، آپ کا کوشچن آنسر ہو گیا؟ جی اگر میں سمجھ گیا کہ بیسکلی جو تجوید کے جو قوانین اصول ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، گرامیٹیکل میننگ جو ہے کوئی ان پہ اثر نہیں ہے، ان کا وہ ادائیگی سے ان کا تعلق ہے، نہ کہ معنی سے. جی، اور وہ ممکن ہے کچھ کیسز پہ دیکھیں ہماری بہت ساری انفارمیشن، اب بالکل یو گاٹ اٹ. ایک ایڈیشنل بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارا جو بولنے کا سٹائل ہے وہ بھی کئی دفعہ ایڈیشنل انفارمیشن یا صفت موصوف ہے یا جملہ ہے ریویل کرتا ہے نا. جس انداز سے میں جملہ کہتا ہوں آپ کو سمجھ آتا ہے یہ جملہ یہ سٹاپ ہو گیا یہ، تو وہ ہمارا مائنڈ اس انفارمیشن کو بھی کبھی کبھی یوز کرتا ہے پروسیس کرنے کے لیے. لیکن آئی تھنک الحمدللہ دی کوسچن از آنسرڈ. Let us look at these exercises. تھوڑا سا پریکٹس کے لیے میں نے ان کو سلیکٹ کیا تھا. مثلا پہلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ. ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھیے، اس کو ایک let me pick a name. علی داور آپ کرنا چاہیں گے اس کو. تو اس میں پہلے بلاکس آئیڈینٹیفائی کریں، کون کون سے بلاکس ہیں اس میں؟ محمد یہ سنگل ہے نا؟ جی جی سنگل ہے نا. اور یہ رسول اللہ، یہ ایک لذا بلاک ہے، پورا بلاک ہے. جی کنیکٹڈ ہے، کیسے پتا چلا آپ کو یہ کنیکٹڈ ہے؟ یہ ایک سنگل نمبر ہے اور یہ کہ کسرہ ہے میں اللہ اینڈ پہ کسرہ ہے اور یہ ہے. ٹھیک ہے، تو محمد ایک پارٹ ہو گیا، رسول اللہ دوسرا پارٹ ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ایک سینٹنس ہے، یہ اب یہ دونوں مل کے صفت موصوف تو محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. ممتاز، آپ اگلا والا آیت ہے ہم نے پڑھی ہوئی آیت، اس کو ذرا دیکھیے، اس میں بلاکس کو ذرا آئیڈینٹیفائی کیجیے. یہ ومن آیات ہی والا. جی جی، ومن تو سیپریٹ ہے، نہیں من کی وجہ سے آیاتی پہ ہے نا، کسرہ آ گیا ہے. خلق السماوات ومن آیات ہی ایک بلاک ہے، خلق السماواتی ایک الگ بلاک ہے. ساتھ میں وہ پھر تھی کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی کسرہ آ گیا، عرض کے اوپر بھی. یہ عرض کے اوپر جو ایک پھر اسٹاپ کیجیے، یہ عرض کے اوپر جو کسرہ آیا ہوا ہے یہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ من کی وجہ سے، کیونکہ سماوات کے نیچے بھی کسرہ ہے اور یہ بھی اس کے سماوات کے نیچے کسرہ ہے اور عرض کے نیچے بھی کسرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو عرض ہے یہ بیسیکلی سماوات کے اوپر کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا؟ جی. اچھا، سماوات کو جس سے سماوات کے نیچے کسرہ دی ہے وہی عرض کو کسرہ دی ہوگی نا؟ جی. سماوات کو کس چیز نے کسرہ دی ہے؟ سماوات کو دیا ہے آیات نے، آیات ہی. وہ تو علیحدہ بلاک آپ نے کہا جی، کیونکہ ہے نا یہ کنیکٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. خلق السماوات، خلق کے ساتھ جب وہ کنیکٹ کر رہا ہے اس لیے وہ سماواتین کے بدلے ہے نا سماواتی ہو گیا ہے، یا ویری گڈ، سماواتن کے بدلے اس کی وجہ عرض اس کی ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور یہاں پر اب یہ واو سے نیا اینڈ کا معنی یعنی ایک نیو سینٹنس شروع نہیں ہو رہا، چونکہ اس کا گرامیٹیکل سٹیٹ عرض کا وہی ہے جو سماوات کا ہے. اس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں ابھی کنیکٹ، یہ پورا اکٹھا ہو گیا. ویری گڈ. آگے
वख्तिलाफी और अलसिनतकुम। अच्छा, ये दोनों और इख्तलाफ है उन दोनों की ज़बानों में और रंगों में। तो अलसिनतकुम और अलवानुकुम ये दोनों एक ब्लॉक है। इख्तलाफुकुम और अलवानुकुम यहाँ तक का एक ये ब्लॉक बन गया है दूसरा। और फिर बाकी आगे रहने दीजिए, बाकी इसका तर्जुमा करें। यहाँ तक का जी यहीं तक का। तो आपने ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो हमने तरीका अगर आपको याद हो, हमारा तरीका ये था ना कि उस तरीके के पीछे से जाके मिन आयात ही और निशानियां हैं इसमें। खल्क़ुस समावात की निशानियां हैं इसके अंदर मुख्तलिफ ज़बानों और रंगों से, राइट? रंगों से। जी दोबारा मैं हेल्प करता हूँ। वमिन आयाते ही, और इसमें निशानियां हैं उसकी ही से शुरू करेंगे ना, उसकी आयात में से, उल्टा शुरू करेंगे। आयाते ही, उसकी आयात में से, उसकी आयात में से क्या है? खल्क़ुस समावात, आसमान और जमीन का खल्क करना, आसमान और जमीन का खल्क करना, और फर्क तुम्हारी जबानों, फर्क तुम्हारी जबानों का और तुम्हारी रंगों का, और तुम्हारे रंगों का। और अगर कोई हम जो जो तरीका हमने ग्रामर में सीखा है उस तरह करेंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अलसिनतकुम, तुम सबकी जबानों का फर्क और तुम सबके रंगों का। ये पहले आएगा। ओके, तुम सबकी जबानों का, तुम सबके रंगों का फर्क। हाँ, तुम सबके रंगों का फर्क। तो अभी हमने जो सीखा वो तर्जमा आप कोशिश करेंगे उसी तरह तर्जमा करेंगे, क्योंकि वो हम फ्लो में हम अब आपको आ गया है उस तरह तर्जुमा करना। जहां पर आपको प्रॉब्लम हो या अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो इस नए तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पिछले तरीके से कंफर्टेबल हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, दे शुड कंटिन्यू विद द ओल्ड वे दैट दे नो। बट अब सिर्फ ग्रामर के रूल्स उनको एडिशनल हेल्प देंगे। ठीक है, वमिन आयाते ही हम जो नॉर्मल लोग इसमें तर्जुमा करेंगे अगर ग्रामर ना पड़ी होती। और उनकी और उसकी आयात में से, ठीक है ना, उनकी आयात में से क्या है? खल्क़ुस समावात। ये सेंटेंस बन गया। ये पहला पार्ट कर ले उसका पूरा सेंटेंस। खल्क़ुस समावात, आसमानों का खल्क करना और जमीन का, व इख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम, और तुम्हारी ज़बानों का फर्क और तुम्हारे रंगों का फर्क। एक सवाल है। आप कीजिए। जी हाँ जी, अगर इसमें ये तो वाज़ेह है खल्क़ुस समावाती वल अर्दी, चूँकि खल्क़ु के ऊपर काफ के ऊपर दम्मा है, उसका जो वेल्क्रो है वो यूज हो के अटैच कर रहा है समावात से और अर्ज से, और दोनों के नीचे कसरा आ रहा है। तो एक वाज़ेह ब्लॉक समझ में आ गया है। अगर जैसे नेक्स्ट है वख्तिलाफ़ु अलसिनातिकुम, क्या आई गेस इसमें जो कुम से पहले का जो ता है अलसिनाती, इज दैट लाइक वख्तिलाफ इज कनेक्टिंग विद द अलसिनाती? जी ऐसे है ना, ये इख्तिलाफ, इसमें 3 वर्ड्स है ना, इख्तिलाफ कनेक्ट हो रहा है अलसिना के साथ। जी अब बात हो गया। और उससे कसरा दे रहा है। Likewise alwani, and then of course जी effects upon the pronoun. बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, ओके। तो यहाँ जो आप जो कसरा देखना वो ये वाला कसरा जो आपका क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन था वो, दिस इज द कसरा दैट इज देयर बिकॉज ऑफ इख्तिलाफ। अच्छा, एक दो एग्जांपल्स में और देना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो इस पूरे ग्रामेटिकल स्टेट की जो है ना इम्पोर्टेंस को जाहिर करती हैं। लेट्स सी इफ वी हैव दैट। काफी एग्जांपल्स इसके अंदर हैं जो लोग कह रहे हैं ना कि एग्जांपल्स हमें लिखना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर आपको हमने काफी एग्जांपल्स दी हुई हैं। हाँ ओके,
ये वाली आयत देखिए, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, ठीक है ना। आरिफ साहब करेंगे इसका, बल्कि शाहिदा आप कीजिए जरा इसका तर्जुमा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द बतहक़ीक़ जाअकुम, तुम्हारी तरफ आए, तुम जाअकुम, तुम लाए, नहीं तुम्हारी तरफ आए, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, नूरुन नूर, और किताबुन मुबीन वाज़ेह किताब। वाज़ेह किताब, ये सिफत मौसूफ की देखिए, सिफत मौसूफ की कंडीशंस इसमें पूरी हो रही हैं, है ना, जी ठीक है ना। और यहाँ पर और ये और इसका ग्रामेटिकल स्टेट वही है जो नूर का है, जी। ठीक है ना। हम्म, अगर इसकी जगह ये सेंटेंस ऐसे होता, अगर से मैं नहीं, अब अगर आप ये हम ये कुरान का हिस्सा ना होता और इसमें मैं सेंटेंस को इस तरह से लिखूं कि कद जाअकुम, अगर आयत ये होती तो इसका तर्जुमा कैसे बनता, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन वल किताबु मुबीन। जी शाहिदा, आप बताइए अब इसका कैसे तर्जुमा करती हैं। बतहकीक तुम्हारे पास आई अल्लाह की तरफ से नूर और खास किताब, किताब मुबीन है ना, तो मुबीनुन है, इसमें तनवीन है मुबीनुन, और उधर नूर पे है तनवीन, तो ये देखिए, ये सिफत मौसूफ है क्या, नहीं नहीं। तो जी ये बेसिकली सेंटेंस, ये एक नया सेंटेंस है, अल किताबु मुबीनुन, ये एंड का माना होगा, तुम्हारे पास आई अल्लाह की तरफ से नूर और किताब जो है वो मुबीन है, वो रोशन है, यानी दो लेदर सेंटेंसेस हैं, सही, जी ठीक है ना। अब ठीक यानी ये और है, वाव है, ये एंड यानी न्यू सेंटेंस बता रहे हैं, आगे न्यू सेंटेंस है। जबकि इस आयत में जो हमने यहाँ पर था, यहाँ पर ये कनेक्ट था, ये नूर के साथ कनेक्ट कर रहा था उसको, सही। जी। आगे जो आयत में नूर के साथ मुबीन जो है वो किताब के साथ भी कनेक्ट कर रहा है और नूर के साथ भी। हाँ, तो मामूलन सिफत मौसूफ मोस्ट ऑफ द टाइम इकट्ठी आती है, तो ये मुबीन की सिफत है, किताब की सिफत है, किताब की सिफत है, दो नूर की सिफत मुबीन नहीं है। नहीं। दोनों सिफात ये नूर आया है और रोशन किताब आई है। और अगर ये बीच में वाव नहीं होता, नूरुन किताबुन मुबीनुन, वो ऐसा नहीं, वो नूरुन मुबीन होता, पर नूर की सिफत होती तो वो वाव ना होता, ओके सही है, ठीक है। तो नूरुन वाव किताब है इस वजह से सेपरेट हो गया, सही है, ठीक। नहीं, अगर वाव होता तो बट ऑल आई अंडरस्टैंड, वो फिर किताब मुबीन को नूर के तौर पर लिया जाता, नूर उन किताब मुबीन। हाँ, यानी नूर आया है ये सिफत, लेकिन इस तरह वो इस्तेमाल नहीं, नूरुन किताबुन मुबीन, यानी नूर जो कि किताब है और मुबीन है, थोड़ा सा। वाज़ेह रोशन किताब। हाँ, वो सिफत बनती नूर की, और नूर की सिफत किताब मैंने देखी नहीं आज तक इस्तेमाल होती हुई, लेकिन वो ग्रामर के रूल्स के हिसाब से फिर वो सिफत मौसूफ बनती है, यानी अल्लाह की तरफ से आया नूर जो कि किताब है, जो कि रोशन है, यानी उतने ये बाकी दोनों वर्ड्स उसकी सिफत होते हैं। जी आरिफ साहब, इसको नेक्स्ट वाले को कीजिए, मैं शुरू वाला सेक्शन ट्रांसलेट कर दूंगा, आखिरी वाला मैं चाहूंगा कि आप उसमें करें, वह अजान, ये सूरह तौबा की आयत है, ठीक है। अजानुन मिनल्लाह, ऐलान है अल्लाह की तरफ से, व रसूल ही। अब यहाँ पर देखिए लफ्ज अल्लाह की ग्रामेटिकल स्टेट कसरा वाली है, ये सब तवज्जो करें, ठीक है ना, और रसूल ही में भी वही ग्रामेटिकल स्टेट है, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पर तर्जुमा करेंगे, और ये ऐलान है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से, यानी जो मिन है ये
अल्लाह को, लफ्ज़ अल्लाह को भी कसरा दे रहा है और लफ्ज़ रसूल को भी कसरा दे रहा है, इलन नास, लोगों की तरफ। यौमल हज्जिल अकबर, हज अकबर के दिन ये ऐलान है अल्लाह का और उसके रसूल का लोगों के लिए। आगे यहाँ से आरिफ साहब ने अन्नल्लाह, किया जी, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, यकीनन अल्लाह बरी ज़िम्मा, यानी उनसे उर्दू में क्या कहेंगे कि यानी परवाह नहीं करता, बेजार है, बरी है, बेजार है, बरी है, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन से, व रसूलुहु, और उसका रसूल, यानी यौम, बेशक अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकीन से बेजार है। अगर ये अन्ना है, इन्ना तो नहीं है, तो बेशक तो नहीं कहेंगे। यकीनन, ताकीद, हाँ ताकीद है ना, इन्ना भी और है, अन्ना दोनों हैं। के भी है, हाँ वो के का माना भी आएगा, ऐलान है कि अल्लाह बरी है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं कोई क्वेश्चन है किसी को यहाँ पर? ये आयत एक इम्पोर्टेंट आयत थी कि जिसमें जिसकी बात जो है वो वन ऑफ द आयत, इसके बाद एराब लगाने की जरूरत अरब्स ने महसूस की। देखिए आयत का जो, इस आयत को मैं दोबारा टाइप करूं यहाँ पर, अन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, बरीउन, बेजार है, मिनल मुशरिकीन। मैं डिफरेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ भी ताकि आपको मतलब समझाने के लिए। वल मुनाफिकीन, अरे साहब इसका तर्जुमा कैसे होगा? अभी आई वाज नॉट अटेंटिव। अच्छा, ये है इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन। उसका इन, यहाँ हम नॉर्मली इन्ना पढ़ते हैं, अन्ना भी सेम है, लेकिन वो उसकी वजह होगी ग्रामेटिकली कि जो अन्ना आया। इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन, बेशक अल्लाह बेजार है मुशरिकीन और मुनाफिकीन से। सबको सब एग्री करें? अजर आप एग्री, इस तर्जुमे से आप एग्री करेंगी? जी, मासा मुझे तो यही लग रहा है, मिनल मुशरिकीन बल, तो मुशरिकीन और मुनाफिकीन जो है वो मुशरिकीन और मुनाफिकीन, मुझे तो सही लग रहा है। से अल्लाह बेजार है। अगर यहाँ पर जब यहाँ पर हाँ जी पे जबर है, अगर ये फतह है इन्नल्लाह पे, तो अगर जी इसमें फाइल और मफूल वाज़े कहाँ से होगा? यहाँ फाइल मफूल तो जब वर्ब आएगा फिर वाज़ेह होगा ना, यहाँ पे तो वर्ब नहीं है। अगर बरी इज बेजारी, ये वर्ब नहीं है। देखिए बरी के ऊपर तनवीन आ रही है, देखिए बरी के ऊपर तनवीन आ रही है, तनवीन जब आ जाए तो नाउन होता है वो। कंप्लीट सेंटेंस इसलिए सही, अल्लाह बेजार है। बरी, और ये अल्लाह का जो फतह आया ना, वो इन्ना की वजह से आया। वो ठीक है ना। तो ये इसमें चूंकि वो नहीं है, फाइल नहीं है, तो ये जुमला इस्मिया है, यानी नाउन से शुरू हो रहा है, और दूसरा भी बरीउन भी नाउन है, दोनों पार्ट्स इसके नाउन है। वो तो वो अभी ये फेल वाला नहीं, उसमें आप कंफ्यूज ना हो। अल्लाह बरी है मुशरिकीन से और मुनाफिकीन से, राइट जी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, जब आपने आरिफ साहब यहाँ पर, बल्कि मैं किसी और से पूछता हूँ, अतीब आप बताइए, यहाँ पर इन्होंने तर्जुमा करते वक्त इस आयत में जो हमने आयत पढ़ी, यकीनन अल्लाह बरी है मुशरिकीन से व रसूलुहु है, इसमें इन्होंने उस तरह का तर्जुमा नहीं किया जैसा यहाँ पर तर्जुमा था। अगर इसमें एक तो ये कि जब मिनल मुशरिकीन ना क्यों है, ये नी, आई मीन टेक्निकली ये मिन के बाद ये नून के पे कसरा नहीं आना चाहिए था, मुशरिकीन के नून के ऊपर। वेरी गुड क्वेश्चन, कौन आंसर करेगा? मुशरिकीन, मिन तो कसरा देता है, तो मुशरिकीना कैसे हो गया? ये आगा, ये कसरे की ही ग्रामेटिकल स्टेट है, क्योंकि ये कसरे की है, ये आया है इसमें मुशरिकीन। ओह यस, या गॉट इट। और मुशरिकीन इसकी ग्रामेटिकल स्टेट्स होती है। सही ठीक है, अब थिंग्स आर बिगिनिंग टू fall in place, राइट? जी, गुड, एप्रिशिएट।
हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मुशरिकीन जो है, और गुड आंसर, मुशरिकीन जो है ये वही ग्रामेटिकल स्टेट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फतह से कंफ्यूज नहीं होना, कई दफा ग्रामेटिकल स्टेट फतह या कसरे से नहीं होती, बल्कि कीन और का और कून से, मुशरिकून और मुशरिकीन। इसलिए डे वन से मैं हमारा लेसन में ही था, मुस्लिमीन और मुस्लिमून में फर्क नहीं है, ग्रामेटिकल स्टेट में फर्क है। सही। ठीक है, यानी वो जो चीजें हम बुक वन में उन पॉइंट्स पे मैं रिपीट कर रहा था, वो इसी वजह से था कि आप जाके वो दे विल बिगिन टू मेक सेंस नाउ। खूब, चलें, ये तो क्वेश्चन आपने मुझसे कर दिया, मेरा क्वेश्चन का भी आपने जवाब नहीं दिया। अल्लाह बरीउम मिनल मुश्रिकीन व रसूलुहु, आपने इस तरह तर्जुमा नहीं किया यहाँ पर आरिफ साहब ने, जिस तरह हमने अभी किया, यकीनन अल्लाह बरी है मुशरिकीन से और मुनाफिकीन से। अगर चूंकि वरसूलहु जो है, से आपका क्वेश्चन ये है कि जो आयत में तर्जुमा डिफरेंट क्यों है? जी जी, आयत का तर्जुमा और है ना, का तर्जुमा और है जी आएगा। सो अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, कि अल्लाह बेजार है मुशरिकीन से और उसका रसूल, यानी कि अल्लाह और उसका रसूल दोनों मुशरिकीन से बेजार है। ये तो आपने, जो आपको मतलब समझ आ गया इसलिए आपने इसका इस तरह तर्जुमा किया ना। सही, ठीक है ना। तो जब ये आयत शुरू में मुस्लिम वर्ल्ड से, अरब वर्ल्ड से निकल के नॉन अरब वर्ल्ड में कुरान गया और उन्होंने तलावत शुरू की, जिस तरह आप लोग बाफाहिम से पहले तलावत करते होंगे, आप में से कुछ लोग ज़ाहिर है जिनको अरबिक नहीं आती, हम सब इसी तरह है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ अरबी पढ़ते हैं, हम तर्जमे की तरफ से तवज्जो नहीं है, ठीक है ना। और जबर ज़ेर की गलतियां करते हैं हम, क्योंकि वी डोंट कभी जबर ज़ेर को फॉलो नहीं कर रहे होते, सही लिखी होती है। इमेजिन करें जब जबर ज़ेर भी ना हो। जी सही, ठीक है ना। तो जब अरब वर्ल्ड से कुरान निकल के नॉन अरब वर्ल्ड में गया और उनको, और या उन्होंने तिलावत करना शुरू की जिनको अरबी ज़बान नहीं आती थी, तो उन्होंने इसको इस तरह से पढ़ा, अन्नल्लाह बरीउन मिनल मुशरिकीना व रसूलिही, ज़ाहिर जो उनके ज़हन में आया उन्होंने कहा व रसूलिही, ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह। तो इसका क्या तर्जुमा बनेगा इस जुमले का? अल्लाह बेजार है मुशरिकीन से और नाउज़ुबिल्लाह उसके रसूल से। ठीक है ना, ये बिल्कुल ही गलत मतलब निकल रहा है ना। सही, ठीक है। तो इस तरह की एक दो आयतें और भी थी इस तरह की तलावत हुई जिससे बिल्कुल उल्टा मतलब निकला। देन द नीड कि नहीं, अब इसको हमें, वी नीड टू कम अप विद सम साइंस जिससे नॉन अरब स्पीकर्स जो हैं वो उनको समझ आ जाए कि कैसे पढ़ना है, गलत मतलब ना निकले। तो फिर ये अरब की तरफ जो है वो तवज्जो हुई और अरब लगाना शुरू हुई ताकि नॉन अरब्स को सहूलत हो पढ़ने की, वरना दिस वाज वन ऑफ द आयत दैट वाज। तो अब ये देखिए ग्रामेटिकल स्टेट, ये सारा ग्रामेटिकल स्टेट से फर्क पड़ रहा है। आपने रसूलहू की ग्रामेटिकल स्टेट अगर आपने चेंज कर दी, रसूल ही कर दिया, फिर वो मुशरिकीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सही, अभी जो ग्रामेटिकल स्टेट है इस वजह से वो अल्लाह के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक, जी जी। कोई क्वेश्चन और इससे? ये कौन जो ग्रामेटिकल स्टेट है, अल्लाह से कनेक्शन कैसे होगा, थोड़ा सा हाँ, रूल वो उसके थोड़ा सा और एडवांस रूल्स है, वो अभी इधर में मुश्किल है सही। इसको एक्सप्लेन करना। लेकिन आपकी तवज्जो इम्पोर्टेंट थी, अच्छी थी, आपने तवज्जो की कि वो अभी भी उसकी ग्रामेटिकल स्टेट डायरेक्टली मैच नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा। जी, अच्छा, इसमें इशारा ये भी आप पढ़ चुके हैं। एक और नाउन की टाइप जो होती है वो पॉइंटर्स हैं, जिस तरह दिस दैट, ठीक है। तो ये उसकी लिस्ट है, ये आप देख लीजिएगा। हम पढ़ चुके हाजा, क्या ये माना होता है हाजे ही फेमिनिन है, ठीक है। इसी तरह दो होंगे तो क्या कहेंगे, क्या दो बनाने का क्या तरीका होता है? अलिफ नून ऐड करना, अलिफ नून ऐड कर दे तो हाजाने, ठीक है ना। तो हाजाने रजुलाने, अगर हम ऐसा वर्ड करूंगा तो क्या माना तर्जुमा किया जाएगा? ठीक है, हाजाने रजुलाने, वो दो मर्द, ठीक है ना। ये दो मर्द हैं, हाजाने, ये दिस, दो मर्द हैं, ठीक है।
इसकी अगर ग्रामेटिकल स्टेट हाजाने की चेंज होनी हो तो हाज़ैने हो जाएगा दो के लिए। तो हाजान दो के लिए, ये जो हाज़ैन है ये इसकी दूसरी ग्रामेटिकल स्टेट है, ठीक है। ये दो हा उलाए दीज आ जाएगा मुजक्कर के लिए, यहाँ पर ये मुअन्नस के हाज़े ही, हातैने और हा उलाए, ठीक है। जालिका वो होता है, ये पढ़ चुके हैं आप, जालिका वो है, तिल का फेमिनिन के लिए है, उलाए का वो, और उलाए का फेमिनिन के लिए भी, मेल के लिए भी सेम होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिम कलर्स में हाज़ैने है, ज़ानिका है, तानिका है, ये वो डिम इसलिए क्योंकि ये कुरान में इस्तेमाल नहीं हुए हैं। कुरान में जो इस्तेमाल हुए हैं वो वही हैं जो डार्क कलर्स में आए हुए हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, मैं इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, ठीक है। आप इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा आपको रीडिंग इसकी एक दफ़ा ज़रूर करनी है ताकि तो इसी स्ट्रक्चर आपके ज़हन में बन जाए। इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा डिस्प्ले करेंगे जरा स्क्रीनशॉट? जी, ये ग्रामर की बुक में है बहरहाल, लेकिन मैं कर देता हूँ। हाँ, नहीं जरा पेज नंबर 16। ठीक है, ठीक है। मेरे तो पास इसमें नहीं है कि बुक, आई डोंट नो। बुक में नहीं थी, ग्रुप में शेयर की है। अच्छा अगर आप अच्छा, देखिए, ठीक, हाँ एक दफ़ा ग्रुप अगर आप देखिएगा तो बुक में ग्रामर की बुक होगी। ओके फाइन। ये अराब भी हो गया, एग्जांपल्स भी, जो कुछ हमने तकरीबन सब कुछ। जी, क्वेश्चन। एराब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रामेटिकल स्टेट। ओके, सॉरी। हाँ, ग्रामेटिकल स्टेट। मौलाना साहब जी, जो जो कह रहे थे ना कि ये रसूल क्यों अल्लाह के साथ है, ये आपने क्लास करते करते बताया था कि रसूल क्योंकि वो अल्लाह का रसूल है, इसलिए उसके साथ वो शामिल करते हैं, क्योंकि आपने कुछ एरो बना के कुछ ऐसे कुछ बताया था कि हु किसके साथ आप कहेंगे तो वो अल्लाह के साथ, ये हु कौन है तो वो अल्लाह जी, है। हु तो मुराद अल्लाह है। जी जी, यहाँ पर हु से मुराद अल्लाह है, लेकिन उनका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। उनका क्वेश्चन ये था कि लाम के ऊपर पेश क्यों आ रही है, वो डिफरेंट क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा ना, वो डिफरेंट। आपकी बात ठीक है, यहाँ पर हु से मुराद अल्लाह है। अच्छा, हर्फ भी हम पढ़ चुके हैं, कुछ हर्फ का तर्जुमा कैसे किया जाता है, ऑल ऑफ दिस वी हैव गॉन थ्रू। जो हर्फ कुरान के अंदर इस्तेमाल हुए हैं उनकी भी लिस्ट मैंने यहाँ दे दी है। तो फिर हमने दो इस्म कैसे आते हैं, कनेक्ट कैसे होते हैं, ऑल ऑफ दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन क्लास, ठीक है। अब आपने सिर्फ एक दफा इसका गो थ्रू करना है, ठीक है ना। बैतुल्लाह का तर्जुमा करते हुए अल्लाह का घर तर्जुमा करेंगे, ये सारे यहाँ पर एग्जांपल्स काफी ग्राफिकल एग्जांपल्स के साथ, ठीक है ना, दी हुई है। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी जब आप एक दफा इसको पढ़ रहे होंगे, बल्कि क्लियर हो जाएगा। एक चीज रह गई। मसलन कई दफा जब दो लफ्ज कनेक्ट होते हैं तो जरूरी नहीं कि दो वर्ड्स हों, ज्यादा भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से, दूसरा तीसरा, जैसा मालिक दीन, ठीक है ना। मालिक यौम से कनेक्ट हो रहा है, यौम जो है वो दीन से कनेक्ट हो रहा है। मालिकी यौमिद्दीन, ठीक है। तो जज़ा का मालिक। इसी तरह जो है वो आपको और भी एग्जांपल्स मिल सकते हैं। सैयदे शबाबे अहलिल जन्ना, ये देखिए इसमें ये सब कनेक्टेड है। तर्जमा तो आपको ऐसे जुबानी याद होगा, लेकिन हम जरा ग्रामर के साथ तर्जमा इसका करना देखिए। लेकिन आहल और जन्नत कनेक्टेड है, क्योंकि इसका अहल का वेलक्रो नहीं है, ठीक है ना। इसने जन्नत को भी कसरा दी हुई है। शबाब जो है वो अहल के साथ कनेक्टेड है, कि शबाब का वेलक्रो नहीं है और उसने अहल को कसरा दी हुई है, ठीक है। ये जो सैयदे है, ये क्या है, ये सिर्फ सैयदैन था। सैयदैन से मुराद दो सैयद, दो सरदार, ठीक है। जब ये आगे कनेक्ट हुआ
इसका वेलक्रो तो नून है ना इसका, जी। तो वो नून ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो सैयद शबाब अहलिल जन्ना, अगर आपने ग्रामर की जो हमने तरीका यूज किया है वैसे आपका तर्जुमा हम कर सकेंगे, लेकिन उल्टा शुरू करेंगे यहाँ से, जन्नत के अहल के जवानों के दो सरदार। अगर मुझे जरा मैं मिस कर दिया, आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो नून कैसे ड्रॉप हुआ है सैयदैन का। ठीक है, देखिए हमने जब भी कनेक्ट करते हैं, अब मसलन आपने अहलुन था, अहलुन होते ना, और फिर जन्ना, अहलुल जन्ना कैसे बना, इसको जो आपने कनेक्ट करना था इसकी वेलक्रो यूज किया ना आपने इसका, जी। ठीक है। तो मैं, अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में बताया था असल में वेलक्रो ऐसे है, दिस इज व्हाट अ वेलक्रो इज। हाँ जी। अहलुन है ना जी। तो व्हेन यू रिमूव अ तनवीन यू आर एक्चुअली रिमूविंग दिस नून, सही, ठीक है। तो ये असल में सैयदैन था ना, जी। ना, तो सैयदैन था, तो जो अब आप कनेक्ट कर रहे होंगे तो बेसिकली यू रिमूव दिस नून। सही, आई सी। जब देखिए क्यों तनवीन की बेसिकली जब आप कहते हैं कि रजुलुन, ये तो तनवीन इज एन एब्रिविएशन, मेंटली आप देखिए, इज एन एब्रिविएशन ऑफ दिस, जी। लाम नून, लुन, तभी लुन बना ना, जी। ठीक है। तो जब आप एक तनवीन रिमूव कर देते हैं और जो लो रह जाता है, तो यू हैव एक्चुअली रिमूव दिस लास्ट नून, सही, ठीक है। तो सैयदैन में भी यदैन, दो हाथ, बैन यदैहि, वो वहां पर भी नून ड्रॉप हो गया। मुस्लिमून को आपने कनेक्ट करना है ना, मुस्लिमून को आप आगे कनेक्ट करना चाहते हैं किसी और वर्ड के साथ, ठीक है ना, तो वो जब कनेक्ट होगा तो ये इसका नून ड्रॉप हो जाएगा। सही। क्लियर सबको? जी किबला, ये सैयद है और सैयद में फर्क क्या होगा, यानी सैयद एक सैयद सिंगुलर है, सैयद है भी तो सिंगुलर है। नहीं सैयद है, नहीं सैयदान, सैयदैन नहीं कह रहा मैं, सैयद है कह रहा हूँ, वॉइस सिर्फ लगते आ जाता ये है के ना साथ, वुमेन के लिए। ये सिंगुलर नहीं, ये असल में सैयदैन है, या और सैयदैन है, सैयदै क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, ये दो, ये असल में सैयदैन था, जब ये कनेक्ट हुआ तो जिस तरह रजुलुन की तनवीन ड्रॉप हो गई, इसका नून ड्रॉप हो गया, ये दो हैं। सैयदै से मुराद ये डुअल का, ये तस्निया का सीगा है, ठीक है। ये सैयदैन था तो सैयदै रह गया उसका, बिल्कुल जैसे यदैन से यद सिंगुलर, यदैन प्लूरल, और अगर हु के साथ मैंने इसको कनेक्ट करना हो तो यदै ही हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये दो हाथ, उसके दो हाथ, क्योंकि मैंने पहली बार सुना सैयद है, वरना सैयद, सैयदा, ये सैयदैन और सैयदून वगैरह, सैयद शबाब अस्सलाम वालेकुम या सैयद, सैयद, हाँ जो ज़ियारत पढ़ते हैं ना, हाँ उसमें ज़ियारत पढ़ने वालों को दिक्कत करनी चाहिए बहरहाल, क्योंकि वो स्पीकर पे पढ़ रहे होते हैं और सब सुन रहे होते हैं, खासतौर पे अहले सुन्नत भी सुन रहे होते हैं, जिनकी अरबी हमसे, जिन्होंने अरबी में बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, लेकिन उनका सारा जोर अरबी जुबान के ऊपर होता है। सही, अस्सलामु अलैकुमा पढ़ेंगे क्योंकि दो हैं, या ये शबाब अहलिल जन्नह ना, अहलिल जन्नह ऐसे होना चाहिए। अगर आप सैयदेक पढ़ेंगे या सैयदा पढ़ेंगे तो गलत है, क्योंकि आप दो पे सलाम कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक बंदा लेके आ रहे हैं। ठीक, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं अरबी में, आपको मतलब कुल्लो, कुल्लो इज ऑलवेज कनेक्टेड विद समथिंग, ठीक है ना, कुल्लो शैइन, हर चीज, गैरुल्लाह, गैर कभी भी बगैर कनेक्टेड के नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड विद समथिंग एल्स, ठीक है ना, इंदल्लाह, ठीक है ना, हमेशा ये कनेक्ट हुआ होगा। क़ब्ला तुलूइ शम्स, ये सारे वर्ड्स आप
جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تحت ہو گیا, خلف ہو گیا, امام, بعد, یسار, یمین, یہ دیز آر ورڈز جو ہمیشہ کسی دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, اسٹینڈ الون نہیں آتے. اگین یہ ایگزامپلس ہیں, ان کو کنیکٹ کرنا ہے. مثلا رضوان اور لفظ اللہ ہو, یہ چونکہ سینٹینس کے درمیان سے ہم نے لیے ہیں قرآن سے, تو اس لیے اس میں یہاں پر فتح دیا ہوا ہے. جب یہ کنیکٹ ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ رضوان من اللہ, رضوان اللہ, رضوان اللہ ہی. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو بھی ظاہر, ویسے ہمیں حوضے کے اندر جاتا ہے کہ آپ ہمیں حوضے کے اندر اگر ہم رضوان اللہ کہتے ہیں, ٹیچر کہتے ہیں نہیں آپ پورا پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے صحیح ہے, آپ نے رول یاد کر لیا کہ نہیں آپ کو ہو گیا اس سینس میں. ٹھیک ہے, ہاں, تو ولی المؤمنون پڑھیں گے یا ولی المؤمنین. ٹھیک ہے, تو گرامیٹیکل اسٹیٹ اس کی چینج کرنی ہے تو کسرہ نہیں لگائیں گے یہاں پر, بلکہ اسی گرامیٹیکل اسٹیٹ مشرکون اور مشرکین اور مسلمون اور مسلمین سے ڈٹرمن ہوگی, تو وہاں پر خیال رکھنا ہے. یہ مختلف ورڈز ہیں, یہ 3-4 ورڈز ہیں. مثلا ایک ایگزامپل لیٹ می سی, کسی کو اسٹوڈنٹ جن کا ابھی تک میں نے, شبی سید آپ ٹرائی کریں گی. مثلا ذکر, رحمت, رب اور کا, ان سب کو کنیکٹ کرنا ہے. آپ نے جو کل جوائن کیا ہے تو شاید تھوڑا سا مشکل ہو آپ کے لیے. لیٹ می, اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو اگر آج نہیں پہلے میں پہلے والے ویڈیوز بھی سن لیں, آپ پہلے کلاسیں دیکھ لوں. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. اینی ون ایلس؟ نصرت آپ کرنا چاہیں گی؟ جی میں چاہ رہا ہوں جنہوں نے ابھی تک, نہیں سوری مولانا صاحب نہیں کر سکتا. اگر میں ایکسپلین کر دوں. جی ایک منٹ, فاطمہ علی آپ کریں گی؟ جی عارف صاحب کیجئے. ایک سیگا ہے یرملون, یا را میم لام واو نون. اب جب بھی کوئی نون تنوین ان سے پہلے آتی ہے تو وہ اس میں ادغام ہوتا ہے, اور اس میں جیسے ذکر الرحمت, اس میں نون بالکل غائب ہو جائے گا. ذکر الرحمت ربک, یعنی اس کو پڑھنا نہیں, اس کو کنیکٹ کرنا ہے. کنیکٹ کرنے سے مراد ہے اچھا سینٹینس بنانا ہے. اس کو نہیں, ورڈ ایک بلاک بنانا ہے, اس کا سینٹینس بھی نہیں بنانا. یعنی جس طرح رسول اللہ ہے نا, جس طرح آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو ناؤنس کو کنیکٹ کرتے ہیں. جی جی, اور تنوین ڈراپ کر دیتے ہیں اور کسرہ دے دیتے ہیں, بالکل اسی طرح. ذکر ربک رحمہ, اسی آرڈر میں ان 4 کو کنیکٹ کرنا ہے. ایک دفعہ میں دوبارہ, میرا کوشچن شاید نہیں ہو سکا, لیکن آپ جس طرح دیکھیں رسول اللہ, آپ رسول ہے اور اس کو آپ کنیکٹ کر رہے ہیں لفظ اللہ کے ساتھ, کیا بن جائے گا؟ رسول اللہ, رسول اللہ ہی, رائٹ, کسرے کے ساتھ. ترجمہ اللہ کا رسول, اللہ کا رسول. اسی طرح میں چاہ رہا ہوں آپ ان 4 ورڈز کو کنیکٹ کریں. ذکر, رحمت, رب. میں کروں؟ جی شاہدہ آپ ٹرائی کریں. ذکر رحمت ربو کا, ذکر رحمت ربو کا. نہیں, اگر میں ٹرائی کروں. کون؟ فاطمہ رضوی آپ کیجئے. جی, ذکر رحمتی ربی کا, رب میں بھی ربی کا, رب میں بھی کسرہ آئے گا, رحمت میں بھی کسرہ آئے گا, اور ذکرون میں تنوین ختم ہو جائے گا اور خالی دمہ رہ جائے گا. شاید فالو کیا آپ نے؟ تجدید آئے گی رے اور رے میں, ذکر. نہیں, اگر تنوین ہٹے گی تو الذکر نہیں ہو جائے گا؟ الذکر نہیں, وہ تنوین ہٹا کے ویلکرو کھولا ہم نے, اور پھر اس سے ہم نے کنیکٹ کر دیا رحمت کے ساتھ, اور رحمت کو ہم نے کسرہ دے دیا,
اور جب رحمت کا تنوین ہٹا اور کسرہ آ گیا تو وہ تنوین ہٹنے کی وجہ سے رب میں بھی کسرہ آ گیا. سب نے فالو کیا؟ تو آگا اس کو اس طرح پڑھیں گے، ذکر رحمت ربکا. جی اچھا ٹھیک، شکریہ. فاطمہ آپ اس کا ترجمہ بھی کیجیے. تمہارے رب کی رحمت کا ذکر. تمہارے رب کی رحمت کا ذکر. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ترجمہ وہ اسی ترکیب جو طریقہ ہم نے بتایا تھا ابھی گرامری کلاس میں، یا جو پہلے آپ کو اندازہ تھا نہیں اس آگا وقت؟ جو آپ نے بتایا کہ ریورس میں ہمیں بلاک تو بنا کے کلیئر ریورس میں. آسان ہو گیا نا، لمبے ورڈز کا جی ترجمہ آسان ہو جائے، تمہارے رب کی بالکل، رحمت کا ذکر. جی بالکل. ورنہ عارف صاحب یہاں پر اگر ان کو دیکھیں گے ذکر و رحمت رب کا، یہ اس رول کو اپلائی کیے بغیر یہ ان کو سیملیسلی ڈائریکٹلی ترجمہ صحیح کر دیں گے، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو لینگویج کی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ دیکھیے خزائن و رحمت، تو خزائن ہے لفظ، پھر رحمتن ہے، پھر رب ہے اور کا ہے. کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن میں تنوین نہیں آتی ٹو بگن ود، لیکن وہ اسٹکی ہوتے ہیں، کنیکٹ ہو سکتے ہیں. خزائن ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ کنیکٹ کریں گے ہم تو عطیب آپ کیجئے کیسے بنے گا؟ جی خزائن الرحمتی ربکا. ربی کا. ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا ترجمہ ہوگا سوری خزائن الرحمتی، تمہارے رب کے رحمت کے خزانے. تمہارے رب کے رحمت کے خزانے. یہ ربی ربو کیوں نہیں ہوا؟ ربکا ربی ہوگا، ربی کا، ربی ہی کا ہے. لیکن پوچھ رہی تھی کہ کیا یہاں پر کسرہ ربی کے نیچے کیوں آ رہا ہے؟ جی کوشچن کیا ہے؟ ہاں ایک بلاک ہے نا وہ خزائن الرحمتی ربک، تو یہ پورا ایک بلاک بن جائے گا نا. جی جی پورا بلاک. رحمت کنیکٹ ہو رہا ہے رب کے ساتھ، تو اس کو ظاہر ہے رب چونکہ کنیکٹڈ ہے رحمت کے ساتھ، تو اس کے اوپر اس کے نیچے کسر آئے گی. اچھا ٹھیک، تھینک یو. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ پھر ایگزامپل اردو میں ہم نے دیے ہوئے ہیں جس کو آپ نے ترجمہ کرنا ہے عربی میں. تو یہ تھوڑی سی پریکٹس ہے، یو ہیو ٹو گو تھرو دس، تاکہ آسان آپ کو جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ سالیڈیفائی ہو جائے، ورنہ رولس آپ بھول جائیں گے پھر سے. یہ عربک گرامر کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، فرار ہیں جب تک آپ پریکٹس کر کے ان کو سالیڈیفائی نہ کریں. تو یہ سم ایگزامپلس باقی مفاہیم کی بکس میں آ جائیں گی، لیکن اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اب یہ نیکسٹ ویک ہے، اس میں آپ یو اسپینڈ ٹائم آن دیز ایگزامپل. کم سے کم اگر آپ ریڈنگ نہیں کر پا رہے تو یہ ایکسرسائزز جو جہاں جہاں دی ہوئی ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں 40 پیجز ہیں، اور A5 اگر آپ نے اس بک کو پرنٹ کرنا ہے کسی نے بھی تو A5 پہ پرنٹ کیجیے گا، جس سے ڈیزائن فار A5 چھوٹا پیج جو ہوتا ہے نا. تو یعنی اگر 40 پیجز ہیں تو بڑے بک بڑی A4 سائز کے 20 پیجز بھی بنیں گے، تو ویری ویری ایزی، 3-4 گھنٹے میں آپ ریڈ کر سکیں گے، کوئی آپ کے لیے ڈیفیکلٹی اس میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میں 3-4 منٹ اور لوں گا. میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم اسم کا سیکشن ختم کر لیں، وچ از آلموسٹ وی ہیو آلموسٹ فنشڈ. تھوڑے 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں، وہ میں بھی نیکسٹ ویک ہم کرتے ہیں. ایک صرف پوائنٹ میں اور بتا دوں تاکہ پھر اس کو ذالک کتابن کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، وہ کتاب ہے یا وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ 2 اسم ساتھ ساتھ جب ہم نے کہا نا کہ 2 اسم ساتھ ساتھ آتے ہیں تو کبھی کبھی وہ صفت موصوف ہوتے ہیں، کبھی کبھی سینٹینس بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ والے کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک ورڈ بن رہا ہوتا ہے، ایک بلاک بن رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سم تھنگ ایلس ہوتا ہے. وہ دوسرا والا اسم جو ہے پہلے کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے، صفت نہیں ہوتا. مثلا ذالک الکتاب، وہ
जैसे हम कहते हैं दैट बुक, इंग्लिश में जिस तरह आप कहते हैं हिज फादर अली, यहाँ पर अली जो है वो हिज फादर का बदल है ना, उसका रिप्लेसमेंट है, राइट? कि मैं कहूँ हिज फादर अली, तो अली जो है वो फादर की सिफत तो नहीं है ना? तो इसमें नकरा और मारफा वाली बात हो जाती है ना? नहीं, ये नहीं, लेकिन माना के हिसाब से अली से मुराद हिज फादर है ना? जी ठीक है, तो जब मैं कह दैट बुक इज ग्रेट, ये अरबी में कैसे कहेंगे? दैट बुक इज गुड कहेंगे। अगर आपने कहा जालिका किताबुन कहा, अगर आपने कहा जालिका किताबुन तो हो जाएगा दैट इज अ बुक, ठीक है। अगर मैंने कहा जालिका किताबुन गुड के लिए मतलब जय्यद का लफ्ज अगर मैं यूज कर दूं, करें कि जय्यद जो है ना वो गुड के लिए आ रहा है, जालिका किताबुन जय्यदुन, इसका क्या तर्जुमा बनेगा? अच्छी बुक है, ये अच्छी बुक है, ये जय्यद बुक है। ट्रांसलेशन दैट बुक इज गुड तो नहीं हुआ, बुक अच्छी है, बल्कि हो जाएगा दैट इज ए गुड बुक, राइट? दैट बुक इज गुड, तो जालिकल किताबो जय्यदुन, इसका क्या तर्जुमा? ये अलिफ लाम की वजह से दा आ गया है, जी जो दाल तो आया ही नहीं है ना? नहीं, अलिफ लाम है तो फिर ये दा बुक हो गई ना। दा बुक नहीं हुआ, दैट बुक, जालिकल किताब दैट बुक, स्पेसिफिक बुक है। हाँ वो तो स्पेसिफिक बुक है, लेकिन अगर होता अल किताब हो जय्यद, The book is good, बुक इज that गुड, book is same हो, that book is फर्क है, द बुक इज गुड और ये दैट बुक इज गुड, okay. ठीक है। तो किताब यहाँ पर हाँ जालिका और किताब, या ठीक है, तो ये कभी कभी ये दो साथ साथ जालिकल किताब का तर्जुमा वो किताब किया जाएगा, वो किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है। अगर आप काइंडली ये पहले वाले और थर्ड वाला जो है इन दोनों का उर्दू में आप प्लीज बताएंगे, जालिका किताबुन जय्यद और जालिका अल किताब। वो एक अच्छी किताब है, वो एक अच्छी किताब है, सही। और जालिकल किताब वो किताब अच्छी है। अच्छा, इसमें तीसरा वाला जो है वो बहुत स्पेसिफाई कर रहा है। हाँ वो स्पेसिफाई कर रहा है कि वो किताब अच्छी है और वो एक अच्छी किताब है, फर्क है दोनों में। अगर इसमें जालिकल किताब भी नहीं आएगा, बाकी नहीं जालिकल किताब भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये किताब वो आएगा, ये वो उस तरह से, ये वो उससे कनेक्ट नहीं हो रहे जिस तरह से आप सोच रहे हैं, दिस इज नॉट अ कनेक्शन, मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं हो रहा, ये दो साथ साथ आ रहे हैं, उनका ग्रामेटिकल स्टेट मैच करेगा इन दोनों का, ठीक है। ये सिफत मौसूफ भी नहीं है, ठीक है। तो ये दैट बुक, और ये मामूलन जालिका के साथ आता है, या ठीक है ना, ये सिर्फ इस तरह की चीज जालिका के साथ आएगी, मगर कहीं पर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ जो आपने पहले पढ़ी हुई है, और उसके बाद विल फिनिश ओवर देयर। अगर देखिए आपने पहले पढ़ा था इस काला लहुम अखूहुम नूह, ठीक है ना, जब कहा, क्या तर्जुमा है?
जब कहा उनसे उनसे उनके भाई भाई नूह ने। ठीक है, अभी अखूहुम एक ये नाउन है, अखूहुम, उसके बाद दूसरा नाउन है नूह। ठीक है, तो जब कहा उनसे उनके भाई नूह ने, तो यह आपने नूह है, ये अखूहुम की एक्सप्लेनेशन है। ओके, ठीक है, इसी तरह मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे वालिद इब्राहिम का दीन। तुम अबीकुम तुम्हारे बाप, हमारे बाप इब्राहिम क्या दिन का दीन। ठीक है ना, मिल्लता अबीकुम, असल में मिल्लता जो है वो कनेक्ट हो रहा है अबीकुम के साथ। मिल्लता, ठीक है ना, मिल्लता अबीकुम है, तो मिल्लता अबीकुम का क्या तर्जुमा बनेगा? हमारे बाप की तुम्हारे मिल बाप का दीन। तुम्हारे बाप का दीन। और इब्राहिम जो है वो असल में तुम्हारे बाप की ना एडजेक्टिव है ना कनेक्ट हो रहा है, ये बेसिकली तुम्हारे बाप को डिस्क्राइब कर रहा है, वो कौन है। ठीक है, तो तुम्हारे बाप बेसिक इब्राहिम। कॉमा, एक कॉमा हम असुम कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इब्राहिम जिस के समय लिए। एग्जांपल दी हिज फादर अली। जी, ठीक है ना, योर फादर इब्राहिम, द रिलीजन ऑफ योर फादर इब्राहिम। तो ये आप अभी इन सब आप तर्जुमा कर चुके हैं बगैर किसी डिफिकल्टी के। मैं सिर्फ ग्रामर में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था, तो ये आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर आपको क्लियर नहीं भी हुआ तो तर्जुमा करते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ यू आर गुड, सबने अभी तक कभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये बहरहाल चूंकि जरूरी था इसको मैंने ग्रामर की किताब में लाना, तो उसमें ले आया। तो इससे हमारा इसम का सेक्शन इज ऑलमोस्ट ओवर। 10 मिनट का काम रह गया है इंशाल्लाह, विच वी विल डू इट नेक्स्ट वीक, एंड देन वी विल इंशाल्लाह स्टार्ट विद वर्ब्स इंशाल्लाह। मैं ये चाहूंगा कि इस वीक में आप कोशिश करें कि इसम के सेक्शन को पढ़ लीजिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चंस हो तो उसको हम नेक्स्ट वीक कर सकें। ये रीडिंग जरूरी होगी ताकि वो सॉलिडिफाई हो सके। बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, इस बुक की रीडिंग और एक्सरसाइज करना विल बी नेसेसरी। इट्स अनफॉर्चुनेट कि अभी तक हमने इसके वो क्विजेस नहीं बनाए, वरना इसम के सेक्शन का एग्जाम में रख लेते तो फिर सब ने इसको फिर थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ रिव्यू कर लेते। वो अभी तक हो नहीं सका, इंशाल्लाह लेटर ऑन। द क्लास इज ओवर। अगर एनीबडी वांट्स टू लीव दे कैन लीव। मैं 2-3 मिनट हूँ, अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई फीडबैक हो तो आई विल बी हियर, बट दोज हु वांट टू लीव कैन लीव। ये क्वेश्चन था, जैसे इसमें इस काल लहुम अखूम में ये काल अखूम है ना, कहा उनके भाई, तो फिर अब उसको डिस्क्राइब करें वो भाई कौन है, वो नूह। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग जी टू से। जी 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 एग्जैक्टली। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था वो जो पिछली वाली एक्सरसाइज की तरफ था, आई डोंट नो, मे बी मैं फॉलो नहीं किया था, वो जो हमने 4 लफ्जों को जोड़ा था खजान, उस वो अगर आप उस पेज पे स्क्रॉल कर सकते हैं। खजाइनो रहमत रब्बे का। जी, ये जो इसमें जो ये तो जो नीचे के हमने किए तो समझ आ गए, लेकिन ये जो इब्तिगान मर्जातुन, ये अब ये मुझे याद नहीं है, या यानी सिंकिंग नहीं हुआ है मेरे अंदर। ये इसके तो दोनों तनवीन में फर्क है ना? क्या फर्क है? अब कनेक्ट करेंगे तो बदल जाएगा ना, कनेक्ट करें इसको। तो इब्तिगा तो होगा, अल हमजा तो फतह तो रहेगी उसके ऊपर, राइट राइट। और मरजाती हो जाएगा, मरजाती, इब्तिगा मरजाती। फिर ये अल्लाह जो है वो अल्लाह की जो अराब है वो क्या होगा? मरजातिल्लाही। जी जी सही है ये? सही है। ओके ओके, थोड़ा सा बस यही कंफ्यूजन। अल्लाह की मर्जियों को चाहते हुए, तलब कर, इब्तिगा का मतलब वो ये तलब करना। इब्तिगा मर्जातिल्लाह, जो वो शब हिजरत की आयत है ना, वमिन अन्नास मई यशरी है यश्तरी नफ्सहु इब्तिगा मर्जातिल्लाह, उन्होंने बेचा, सौदा किया अपने नफ्स का अल्लाह की मर्जियों को, अल्लाह की मर्जियों को चाहते उसके बदले में। ओके ओके,
सो ये एक्सरसाइजेस करके हम आपको सबमिट करें? ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, कोई बाकी सब लोग देख लें, अगर किसी का कोई डिफरेंट आंसर होगा तो वो कमेंट कर देगा, मैं भी देख लूंगा, लेकिन सबने मुझे सबमिट नहीं करनी, लेकिन आप इनमें से अक्सर सिंपल होंगी, जहां पर आपको इशू हो वो शेयर अच्छा, कर जो दें, इशू या हो वो, हाँ ठीक वो है आप जी, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। या हमें नहीं आता तो ग्रुप में ही पूछते हैं। थैंक यू आसिफ, जज़ाकल्लाह। थिंग्स विल गेट, अब देखें, अब ग्रामर शुरू होगी तो अब ये चीजें और ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी, रूल्स। तो एक दफा इसकी प्रैक्टिस, अगेन एम्फसाइजिंग, किसी एक दफा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ये एक तरह से सॉलिडिफाई हो जाए, और फिर आगे जब हम वर्ब शुरू करें तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हमें ना हो, क्योंकि वर्ब्स में काफी रूल्स ज्यादा है नाउन से, और हमने उसको भी 4 सेक्शंस में ही करने हैं। तो ये लेट्स गेट द नाउन ओवर विद इंशाल्लाह, एंड देन विल स्टार्ट विद वर्ब्स इंशाल्लाह। मेरा छोटा सा क्वेश्चन, इंग्लिश में सिफत और मौसूफ को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, नाउन और उसका एडजेक्टिव। नहीं, तो सिफत एडजेक्टिव है, सिफत एडजेक्टिव है, और एंड मौसूफ है वो मौसूफ नाउन है जिसके लिए जिसकी एडजेक्टिव आप ला रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। एराब ग्रामेटिकल स्टेट है वो, ये अगर आप इसको प्रिंट कर लेंगे ना तो साथ साथ लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा, अगर आपने प्रिंट कर लिया हो या कर ले। राइट, मैं अभी लिख ली, मतलब ठीक है। हाँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।